what did Pooh say कि अगर लोग मंदिर में भगवान को देखने की जगह मुझे देख रहे हैं तो it's not my problem. I had to get some strong coffee for this. But something about human behavior popped up in my head and I had to let it out. Personally, I have never been a people pleaser, but it has come to my attention that a lot of you are. Wow, there's caramel in it. So let's talk about it. मैं कभी भी people pleaser के नाम से नहीं जानी गई हूँ. In fact, I was a little bit of a beat your shit up type of a person ever since I was a kid. Ever since I know, and that's what I've also been told. I think I was born with natural boundaries. And some people at my old job even used to call me Chota Don. Maybe I gave off that energy. But when I got married and I looked around, I saw that a lot of people, especially women, tend to become people pleasers for some reason. Maybe it's because you're adjusting in a new family, maybe because everything is new at that point. So it was a bit of a horrifying realization, if I must say. Women mostly एक बहुत ही chronic people pleasing zone में फंस जाती हैं अपनी life में, whether it's job, whether it's marriage, whether it's relatives, whatever it is. Something about us women, we tend to people please a lot. And वो कहाँ से आया है? We have just been taught that adjusting and saying okay, sorry, thank you is the only way that you can get things done in life, but that is absolutely not true. Let's say someone at your job told you that something needs to be completed within a certain amount of time and it takes you a lot longer than that. Women क्या करेंगी कि हाँ, okay, I'll do it. If there is someone that did you wrong, did whatever that was not meant to be done, you just say, oh, it's okay, let's not create a problem, bother नहीं करते सबको. But मेरा ये मानना है कि करो bother लोगों को, करो परेशान थोड़ा सा. ये दुनिया एक बहुत ही male centric दुनिया है. It is a patriarchy after all and we are not meant to succeed in this. जितना जल्दी ये realize कर लोगे उतना जल्दी you will start seeing success, you will start seeing people listening to you. There was this one incident when we were out for a home viewing, me and Ravish, and there was this one property dealer जो मुझसे straight forward बात ही नहीं कर रहा था. He was like कि भाई मैं ये इस आदमी को ही बताऊंगा सब कुछ जो भी फीचर्स है. And he was carrying on, मैं आ रही हूँ. He would not stop or wait for me to be there and then explain things. And I was like, I'm done with this. And I told my husband कि भाई this is not the person I would ever be buying something from, let alone a house. And I made this so clear कि भाई उस बंदे को ये पता चलना चाहिए कि he is the reason that he lost this one customer or one property buyer, which is huge for him. एक बार ऐसा और हुआ था कि there's this car that I really like and I wanted to test drive it. There was this woman who was showing us the cars, who was the dealer, and she said कि while we were going out for the test drive, she said कि sir आप इस road से गाड़ी निकाल लेना because this is a सर्विस लेन एंड ये बहुत बिजी रहती है. मैम को आप बाद में दे देना गाड़ी. एंड आई वाज लाइक क्यों, मैम नहीं चला सकती क्या? मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे नहीं पता क्या? शी वाज लाइक ओह नो 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सी अगर उस पॉइंट पे मैं ऐसे बोल देती कि हाँ कोई बात नहीं चल, इसने बोल दिया, हाउ वुड शी रियलाइज दैट शी इज द पर्सन डूइंग समथिंग सो रॉन्ग बीइंग अ वुमन? एंड शी इमीडिएटली said कि yes बिल्कुल मैम आप चलाइए प्लीज, नो वरीज, आई एम सो सॉरी. तो मेरा पॉइंट ये है कि बनो थोड़ा इनकन्वीनियंट, थोड़ा सा लोगों को बताओ दे आर आउट ऑफ लाइन, थोड़ा बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, एंड देन ओनली विल यू क्रिएट अ स्पेस फॉर योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड. ये कोई प्लेस आपको बनाकर नहीं देता. Men are so delusional, even if they cannot do something in their mind, they are the best person to do it. उनको लगता है कि ये मेरे को अपने हाथ में चीज मिलनी चाहिए, ये जॉब या ये some achievement or whatever it is. उनको लगता है कि भाई वो उसी के लिए बने. Why? Because they are programmed like this. हमें अपने माइंड को बहुत रीवायर करना पड़ता है, अपनी थिंकिंग वे को कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है. यू ऑलमोस्ट हैव टू ट्रिक योरसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट यू आर द मेन कैरेक्टर. देन पीपल प्लीज करके आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. यू हैव टू क्रिएट दैट रियलिटी फॉर योरसेल्फ. आई एम गेटिंग सो वर्कड अप फॉर दिस, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर इयर्स. आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दिस इनटू माय लाइफ. आई हैव सीन पीपल become people pleasers and then lose out opportunities in life, lose out on their peace. People literally get chronic diseases. There have literally been studies where people get autoimmune diseases from बहुत लंबे टाइम तक, जब वो अपने स्ट्रेस और अपनी जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है वो नहीं डिक्लेयर करते, तो उससे देयर बॉडी लिटरली traps that stress and they get on autoimmune diseases. They get chronic headaches,
That is a result of people pleasing. Stomach ache all the time, people pleasing. Literally, you get diseases from bottling things up and never saying no. You have to start saying no and set up your own boundaries. क्योंकि कोई और आके नहीं बनाएगा वो तुम्हारे लिए. You have to be that main character. अगर अपनी ही लाइफ में खुद को नो नो बोल के पीछे करते रहोगे, won't you become a side character? मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको कोई कुछ पूछता है एंड योर आंसर हैज टू बी नो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैं पानी में डूब के मर जाऊं लेकिन मैं मना नहीं कर पाऊंगी? आपको किसी ने टेक्स्ट कर दिया कि आ जाओ इस वीकेंड मिलते हैं, भाई आपसे मना ही नहीं हो पा रहा है. क्यों? किसने फोर्स किया आपको? और क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? जो लोग वैसे भी आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे, won't they be happy to support you? कि आप अगर नहीं आना चाह रहे, you're feeling down, feeling stressed out, feel like you need to stay at home, relax, तो वो समझेंगे. और अगर वो नहीं समझ रहे, they are not your people. अगर आपको खाना बनाना पड़ रहा है एंड आपको पता है कि आपको शाम को जाना ही बाहर है, तो आप मना क्यों नहीं कर पा रहे? आप क्यों ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि आज ये नहीं हो पाएगा, मे बी सम अदर डे आई विल कुक? बट भाई आपको मतलब इतना यहाँ और यहाँ पे स्ट्रेस लेके उसको बॉटल अप करने में क्या मजा आ रहा है? आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपको अगर बाहर बुला रहे कि भाई कोई बात नहीं, अभी नहीं आ पा रहा, शाम को आ जाइए, और आपको नहीं आना है, भाई सिंपली टेक्स्ट हिम, आई कांट मेक इट, लॉक योर फोन और सो जाओ. Nobody can force you to do something that you don't want to, right? It's as simple as that. एक बहुत ही स्पेसिफिक आपकी एनर्जी होती है, और जब आप लोगों को वो एनर्जी को क्रॉस करने देते हो ना, देन आप नहीं रहते. कभी लोग आपको ही फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते, सोचते कि हाँ इसको तो हम 2 बार बोलेंगे, ये आ जाएगा या ये आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? बट भाई अल्टीमेटली फिर आप, you are not you. I will not be Ruchita if I don't respect that boundary for myself. और एक ये भी चीज है कि जब आप मना करना शुरू करोगे लोगों को, and when you set up your boundaries, सामने वाले uncomfortable होंगे. That is inevitable. It's human nature. बट अपनी लाइफ में मैंने जब ये इम्प्लीमेंट करके देखा, जब मेरी शादी हुई, उसके बाद I started saying no to plans I absolutely did not want to be a part of. और जब तक मेरा मन नहीं करता कि इट शुड बी अ हेल येस वाला प्लान, तब तक मेरे लिए इट्स अ हेल नो. एंड मेरा हस्बैंड भी ये रिस्पेक्ट करता है, एंड वी हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स विद पीपल, विद आवर फ्रेंड्स, विद रिलेटिव्स, एवरीवन. एंड जो लोग रियली इसको रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड जो नहीं करते, वी आर ऑल्सो उतना ही पार्ट ऑफ देयर लाइफ जितना दे आर ऑफ आवर्स. हर टाइम येस बोल के आप एक तो अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, दूसरों से रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर, और किसी और गलत इंसान पे आप वो गुस्सा निकाल रहे हो. तो isn't it better कि जहां पर आपको एक स्टॉप लगा देना चाहिए किसी चीज को, वहां पे आप उसको उसी टाइम लगा दो. पोलाइटली बोलो, आई नेवर सेड यू हैव टू हर्ट एनीवन व्हाइल यू आर सेइंग नो, और व्हाइल यू आर मेंटेनिंग योर बाउंड्रीज और एस्टैब्लिशिंग योर बाउंड्रीज. बट एक तरीका होता है उसको बोलने का, एंड अगर सामने वाला समझ पा रहा है तो ठीक है, नहीं समझ पा रहा, वेल गुड बाय देन. और ये जो सोसाइटी है, दिस लव्स अ लो मेंटेनेंस वुमन, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि जो वुमेन इज लो टू मेंटेन, किसी भी चीज को मान जाएगी, जब भी बोलो तब तक वो अच्छी होती है. जैसे ही शी कम्स इनटू हर पावर, भाई शी इज डिफिकल्ट टू मैनेज, ये तो भाई बड़ी तेज है, ये किसी की नहीं सुनती, ये अपनी ही करती है. अल्टीमेटली जब सामने वाले को फायदा नहीं हो रहा होता ना, वो तभी ये सब बोलता है. अगर वो भी रिस्पेक्ट करता है आपकी, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा इफ यू आर लो और हाई मेंटेनेंस. दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर. दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. आपकी एक बड़ी पर्सनालिटी है, उसको श्रिंक करके रख के किसी बॉटल में दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और कोई जरूरत नहीं है भोली भाली बन के रहने की, हर टाइम जी हाँ जी करने की, क्योंकि यू आर अ डीवा अल्टीमेटली. एंड जो डीवा तुम अपने माइंड में हो ना, वो तुम अगर सामने ले आओ, एंड यू कीप दैट फिल्टर, जहां से आपको बेकार लोगों को, जो लोग ओवरस्टेप करते हैं बाउंड्रीज, उनको अंदर नहीं आने देना. वो फिल्टर ऑन रखना है अपना हमेशा. आगे बनो थोड़ा डिफिकल्ट, इट्स टोटली फाइन. डिफिकल्ट पीपल गेट शिट डन. आई गेट शिट डन ऑल द टाइम. एंड अगर कोई मुंह बना के बैठ रहा है, इफ समवन डजंट वांट टू डू देयर जॉब जस्ट बिकॉज यू वर टेलिंग देम एग्जैक्टली हाउ टू डू इट विदाउट ओवरस्टेपिंग दैट टू, तो फिर भाई वो उनकी प्रॉब्लम है. इफ दे डोंट वांट टू बिहेव अ सर्टेन वे विद यू बिकॉज you are too difficult or you're a diva, then it's their problem, it's not your problem. What did Pooh say? कि अगर लोग मंदिर में भगवान को देखने की जगह मुझे देख रहे हैं, तो it's not my problem. Just be that in your life, be that Pooh character, and trust me, I'm telling you, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे gateways, doors, opportunities open up हो जाती हैं अपने आप.
You do not have to shrink down to a level where you're just a side character to someone else's life. Trust me, there are people जो बहुत वैल्यू करेंगे आपकी इस पर्सनैलिटी को, आपकी बोल्डनेस को, आपकी एक बिग पर्सनैलिटी को, एंड अपनी लाइफ में वो लोग भी अपने आप को वैल्यू करते होंगे. सो यू विल फॉर्म अ ब्यूटिफुल सर्कल ऑफ सच वेल राउंडेड, गुड, हाई थिंकिंग पीपल जो आपको भी अपलिफ्ट करेंगे. खुद तो वो अपलिफ्ट होते ही हैं अपनी लाइफ में. I have such friends. I know when something is wrong, we have to raise a point right then and there. My bestie, she is a fearless woman. मैं कई बार ऐसे घबरा जाती हूँ. The way she is just, अगर किसी ने कुछ गलत किया उसके साथ, she will not leave him. You know those people जो waiters को बता देते कि भैया हमने तो ये ऑर्डर किया था, आपने ये ऐसे बना के दे दिया, please take this back. She will send the food back. Literally, she will. She's that kind of a person. She does not aim to please anyone. And I aspire to be her someday. So just try to be the main character in your life. और ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. You just don't have to be a background character in someone else's life. And देखना कितनी beautifully transformation दिखेगी. Just try it for a week maybe. And let me know if you have done something like this, or you have been a people pleaser in the past, or now are aiming to not be one. And I'll see you next time. Cheers!